मैं जो गीत लेके आई हूँ आप सबके लिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सबको बहुत पसंद आएगा। आ आ आ परम ज्योति से आत्म ज्योति जला दे, परम ज्योति से आत्म ज्योति जला दे। चलो शिव पिता से सभी को मिला दे, चलो शिव पिता से सभी को मिला दे, सभी को मिला दे। परम ज्योति से आत्म ज्योति जला दे। सहयोग से साथ में सब को लेकर चले स्नेह से हाथ में हाथ देकर। हम हैं सभी के, सभी हैं हमारे, सदा के लिए भेद दिल से भुला दें। परम ज्योति से आत्म ज्योति जला दे। हम भाल पर एक चमकते सितारे, तन से है न्यारे पिता शिव के प्यारे। ये सुख शांति का दौर मंगल बिठा कर, खोया खजाना वो फिर से दिला दे। परम ज्योति से आत्म ज्योति जला दे। प्रभु से मिले मन की ये कामना है, सत्यम शिवम सुंदरम भावना है। बनो आत्मज्ञानी, हो अमृत सी वाणी, ये संदेश शिव का सभी को दिला दे। परम ज्योति से आत्म ज्योति जला दे। चलो शिव पिता से सभी को मिला दे, चलो शिव पिता से सभी को मिला दे, सभी को मिला दे। परम ज्योति से आत्म ज्योति जला दे। थैंक यू वेरी मच। मेरा जो अगला गीत है ये सभी को, आई मीन यू ऑल आर वेरी वेल नोन टू दिस सॉन्ग, तो मेरे साथ ये गीत ज़रूर प्लीज़ गाना। एटलीस्ट आप इसमें क्लैपिंग भी कर सकते हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका नहीं कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा,
जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाया है चहूँ और अंधेरा, भटक गई हैं दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो। एवरीवन लाउडर प्लीज। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। Thank you very much. Om Shanti. Wish you a very healthy, wealthy and happy Diwali. Thank you once again. Om Shanti, and a greeting for Deepavali to each and every one, but also a greeting for the new year. It's a time for celebration. We know that there's darkness outside in the world, and yet we're celebrating because we also know that even though there's darkness, even one little candle, one little deepak is able to remove that darkness. You don't have to fight with the darkness. You don't have to sweep it away. You just have to light one deepak, and that's sufficient. But from that one deepak, there can be many, many other deepaks. And so we call this festival Deepavali, or we even call it Deep Mala, the rosary of lights. And it's a reminder that what we are doing now is connecting with the One Supreme, the eternal light, the one whose flame never diminishes, the one who shines the light of love and truth and joy and beauty and purity continually. And so as the soul connects with the Supreme and we're able to join that inner link with the divine, we're then able to experience our own light being lit once again. And of course, from one, many, many other souls can also experience that enlightenment, that light coming back into their lives, so that they too can become instruments to remove the darkness of others. Diwali is a time for giving sweets, giving presents, giving love, many things. And of course, it's also a time when families come together. And what we're doing is sharing the love of our hearts. No matter how beautiful the present may be, or how little it might be, but the joy of giving with love, with the heart, from the heart, is such that it touches the heart of the other. But can I do this every single day? Can I always remember the One Supreme so that my light stays shining bright, but also
through this, I'm able to give something from my heart every day to each one I meet. I don't have to give something physical. What I can do is to give the pure good wishes of feelings and love, of joy to others. It means I have to clean out my own heart so that any trace of ego and anger and greed, etc., all of this is abolished. And once I am clean, then yes, I draw God's virtues and qualities and I share those. So pure thoughts, good wishes, pure feelings for all, but also the words that I speak. Can they always be words of support and encouragement and inspiration? So often our words are like a sword that cuts the heart. But let me have words that can link hearts together so that I'm using my tongue like a needle, linking hearts together with that love. And so my words of compassion and kindness and my actions, again, what is it that I can give? I can give my time. I can give my ears. I can give my sympathy, my empathy. And so let there be not just today for 1 day or 4 days Diwali, but let there be Diwali every single day. Enjoy your Diwali. Om Shanti. प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती। आंगन ये लगता है पूजा की थाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली। है गुलाबी गुलाबी मौसम, धड़कन भी तो है रोशन, हर दिल में जगमग होती है। खुशियाँ बांट लो हर पल, हो हर जीवन उज्ज्वल, ज्योति से जलती ज्योति है। मुस्कानों की मिठाइयाँ, हंसती हवाइयाँ, देखो जहाँ भी अपना लगे। अब तो मिटाए नफरतें, रहे मोहब्बतें, के राम जी की ब्लेसिंग से आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली। आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सबको गले से लगाएंगे, रोते हुओं को हंसाएंगे, लेके उम्मीदों की एक फुलझड़ी हम मोहब्बत के दीपक जलाएंगे। थी बहुत सुंदर रीति से बच्चियों ने डांस किया, और जिन्होंने भी डांस सिखाया, अंजलि बहन जो कोरियोग्राफर है, प्लीज़ उन्हों के लिए भी ज़ोरदार ताली। लगभगों से आकर स्पेशली बच्चियों के लिए डांस। अंजलि बहन एक बार हाथ ऐसे हिला दो।
तो थैंक यू बहुत सुंदर कोरियोग्राफ करने के लिए। ये कॉम्बिनेशन था नहीं ईस्ट और वेस्ट का, तो मज़ा आ गया। बहुत शॉर्ट टाइम में लेकिन बहुत अच्छी रीति से इन्होंने प्रिपेयर किया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने दीदी जी से भी इतना सुंदर सुना दिवाली का मैसेज, तो उसको और थोड़ा सा हम क्लैरिफाई भी करेंगे और दिवाली का रहस्य भी जानेंगे। तो हमारे साथ आज विशेष लंदन से गोपी बहन आए हुए हैं, जो पिछले 42 ईयर्स से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन सीख रहे हैं। बचपन से ही उनकी पूरी फैमिली ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई है और बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। और क्या बताएं, इनका तो अनुभव इतना अच्छा है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबका कॉम्बिनेशन आपको अनुभव मिलेगा, क्योंकि ये पूरे विश्व में काफ़ी सेवाएं दे रहे हैं। अभी शॉर्ट टाइम में, कल ही वो फ्रांस से आई और कल ऑस्ट्रेलिया जाएगी, इसके बीच में लेस्टर आ गई। तो तो बड़ा सुंदर आप इनका अनुभव, भारत में भी वो कई जगह पर घूमते रहते हैं और हमारे माउंट आबू में भी विशेष इनका पार्ट चल रहा है, रोल प्ले कर रहे हैं और वहाँ रहते हुए भारत की सेवाएं भी कर रहे हैं। फिर जब यूके आते हैं तो वेस्टर्न सेवाएं भी करते हैं। तो आपको अच्छा कॉम्बिनेशन, जैसे गीत में दोनों कॉम्बिनेशन मिला, आपको गोपी बहन के टॉक में भी दोनों कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये 42 सिर्फ नंबर है, लेकिन आप इनका टॉक सुनेंगे तो आपको ट्रिपल ईयर का अनुभव इनके उसमें से मिलेगा। तो प्लीज़ गोपी बहन, ज़ोरदार तालियों से गोपी बहन का स्वागत कीजिए। तो गोपी बहन हमारे साथ आएंगे, हम उनसे कुछ चिट-चैट करेंगे दिवाली के बारे में और कुछ ज़्यादा जानने की हम कोशिश करेंगे, जितना हो सके हम इस समय पे ले लेवे इनसे। ओम शांति। और सभी को दिवाली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और इन एडवांस नूतन वर्ष अभिनंदन। अभी बता रहे थे कल फ्रांस से आए और परसों जाना है और बीच में लेस्टर में रुके, तो ईस्ट और वेस्ट, लेस्टर इज बेस्ट। नहीं नहीं, सच में जैसे हम अंदर आए, मुझे इतनी प्रेम भरी भावनाएं की महसूसता हुई। और यही हमारी ताकत है। कहते हैं ज्योत से ज्योत जगाओ, लेकिन प्रेम की भावनाएं जागृत हो रही है दिल में। और ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ, एक हृदय स्नेह वाला प्रेमी रहे तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, अभी हम आगे के लिए इस बात पे एक्सप्लोर करेंगे आज शाम को। लेकिन हमारे लिए तो बचपन से ही मैं कहूँगी, जैसे दिवाली का त्यौहार आता था तभी हमको यही फीलिंग आती थी, जैसे हम वो दीपक को माना उसको लाइट करते रहते थे, तो उसी समय मुझे ये फीलिंग नेचुरल आती थी कि एक एक आत्मा जो है विश्व में, उसकी दीपक जग रही है। और जैसे हमारे क्या है, एक कैनपी बन रही है, तारों की एक कैनपी, एक छतरी बन रही है तारों की हमारी दुनिया में। तो हम तो 8 साल की उम्र में आए थे, माना 8 साल की उम्र में हमने मेडिटेशन सीखा था। और जैसे हमने मेडिटेशन सीखा तभी ऐसे लगता है कि ये एक लाइट की दुनिया है, वो दिखाई नहीं दे रही है हमको, लाइट नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा दिखाई दे रहा है। और फिर अंधेरा में एक दो के साथ झगड़े करते रहते हैं, दिखाई नहीं देता है, इसको ठोसा लगाओ, इसको दूर मिटाओ, घृणा भाव, वैर भाव। तो जब लाइट में आएंगे तो खुद का रास्ता दिखाई देता है, कहाँ मुझे जाना है, ताकि मैं औरों के रास्ते में पड़ूं नहीं। ये भी एक दूसरी बात है। तो आज हमारी बहन जी हमारे साथ कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर तो नहीं, चिट चैट करेंगे थोड़ा आपके साथ। अभी जब दीदी का, जयंती दीदी का सुन रहे थे, तो दीदी ने कहा कि हर दिन दिवाली मनाओ। वही साल में एक दिन दिवाली मनाने में पसीने छूट जाते हैं, हर दिन कैसे दिवाली मना सकते हैं।
क्योंकि आज मुखौटे इतने हैं, क्लीनिंग डिफरेंट बात है, चेहरों पे मुखौटे इतने लेके सभी घूम रहे हैं, और कई बार खुद भी खुश नहीं है, फिर भी कोई पूछता है ठीक हो, हाँ खुश है। हाँ, तो रोज़ रोज़ तो हर एक को हैप्पी दिवाली नहीं कर सकते कि मैं बड़ी खुश हूँ, दिया जल रहा है, तो वो रोज़ दिवाली मने, वो कैसे ला कर सकते हैं? देखो, पहले तो ये देखना है लाइट का आधार क्या है, क्योंकि दिवाली तो एक जलाने की बात नहीं है, एक लाइट में रहना, लाइट रहना, इसकी बात है। लेकिन आजकल तो देखा जाए सब भारी हो गए हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में भारी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, तो इट्स इम्पॉसिबल टू सेलिब्रेट लाइट व्हेन यू आर हैवी। तो हमको लगता है कि द बेसिस ऑफ लाइट इज ट्रूथ, क्योंकि लाइट एक केवल एक प्रकाश नहीं है, एक गहरा एक रियलाइजेशन है। अंदर की आँख खुलती है, मैं खुद को पहचानती हूँ, मैं ईश्वर को पहचानती हूँ, अपने कर्मों का रियलाइजेशन होता है। देखो, दिवाली के शुरू में चौपड़ा पूजन होता है ना, अकाउंट बुक बंद होते हैं, नए अकाउंट बुक खुलते हैं। और आजकल तो धन की बात जब आता है तो सोचते पैसे की बात है, बट यू नो व्हाट द ग्रेटेस्ट कैश इन द वर्ल्ड इज? You know what the greatest cash in the world is? Your karma. आपने अपना चौपड़ा पूजन किया, अपने कर्मों का। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी है कौन? लक्ष्मी एक मूर्ति है, एक सर्वगुण की मूर्ति है, सर्वशक्तिया की मूर्ति है। उसने ऐसे कर्म किए हैं जो ऐसा चरित्र बना है, केवल चित्र की बात नहीं है ये। तो अपने कैरेक्टर को देख करके आई हैव टू क्लोज माई अकाउंट बुक्स। क्या है, हम वेल्थ को वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स नहीं मानते हैं। मैं जब अपना जीवन नियमित अनुसार जीती हूँ तो मेरी डिसीजन मेकिंग पावर ऑटोमेटिक चलती है। प्रिंसिपल्स जब होते हैं लाइफ में, इजी टू मेक डिसीजंस। प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं, बस खाने पीने के लिए जी रहे हैं, अच्छा ऐश आराम के लिए जी रहे हैं, प्रिंसिपल्स नहीं है तो डिसीजन मेकिंग पावर की कमी है, निर्णय शक्ति नहीं होती है, डिसीजन नहीं ले पाते, तो सत्यता आपके जीवन में कैसे आएगी? मैं कहती हूँ जो सत्य के राह पर चलेगा ना, गॉड इज ट्रूथ, वो सदा उसका कंपेनियन रहता है, क्योंकि ट्रूथ ड्रॉज ट्रूथ। तो मुझे ये लगता है कि दिस इज द टाइम नॉट जस्ट फॉर क्लेनलीनेस, मैं कहूँगी ट्रांसपेरेंसी, डीप ट्रांसपेरेंसी। यू नो, जैसे हम कहते हैं खुद को फेस करना एक बहुत बड़ी बात है। हम लॉयर की पढ़ाई कर रहे थे बहुत साल पहले, क्योंकि अंदर ऐसे मन में ये सोच था, बिलीफ था कि समाज में बदलाव होना चाहिए, तो जहाँ पे डिसीजंस हो रहे हैं वहाँ पे हमको इन्फ्लुएंस करना है। लेकिन उस समय में जब भी हमने पढ़ाई के बीच में थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस किया था, तभी मैंने रियलिटी ऑन द ग्राउंड महसूस किया कि हर एक की वृत्ति बहनों के प्रति, स्त्री के प्रति, आपस में जहाँ पे केसेस होते थे, जहाँ पे पैसा होता था, वहाँ पे डिसीजन होता था। तो मैंने अपना दिल और विवेक और मन को पूछा कि क्या आपके पास इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, या लड़ाई में भी आप खुद अपनी खुशी को गवाएंगे? यू अंडरस्टैंड? तभी आई हैड टू ईट हम्बल पाई, और मुझे बहुत एक गहरा चिंतन करना पड़ा। देखो, ये कार्तिक का मास है जिसमें हम दिवाली मनाते हैं। कार्तिक का मास इज अ टाइम फॉर स्पिरिचुअल कॉन्टेम्पलेशन, जिसमें एवरीथिंग स्टार्ट्स टू स्लो डाउन, और हर एक अपने आप को एक आईना माफिक देखे, मेरे प्रिंसिपल्स क्या है और मेरे कर्म क्या हुए, उसका अकाउंट बुक बंद करना है। क्योंकि क्या है, कई बार हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन कर्म ऐसे जाता है, प्रिंसिपल्स ऐसे जाते हैं। या हम इतना सोचते हैं, सोचने के बाद इतना बोलते हैं, बोलने के बाद इतना कर्म करते हैं, और बीच में एक गैप होता है ना, तो विवेक खाता है, मन खाता है। तो ये जो जब विवेक खाता है ना,
और दिल भी खाता है, मन भी खाता है ना, इसके आधार से भारीपन शुरू होता है। थोड़ा सा विवेक और मन क्लैरिफाई करेंगे, क्या है विवेक और मन में अंतर क्या है और ये देखो, कैसे काम करते हैं? हमारा मन, वैसे तो आप दोनों बातें कहेंगे तो एक आत्मा की शक्ति है। देखो, हमारी भावनाएं कहाँ से प्रकट होती हैं, इसका सार, इसका एसेंस कहाँ है? एक बिल्कुल सूक्ष्म आत्मा उस भावना की बीज है, सोर्स है। तो आत्मा की शक्ति में जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश होती है तो एक मन, कहेंगे प्रोजेक्टर स्क्रीन, मन एक पैदा होता है जिसमें जो भी आत्मा में इंफॉर्मेशन, डीएनए है, उस मन के ऊपर आप दिख सकते हैं। और एक तरफ है बुद्धि, जो हमारी निर्णय करने की शक्ति, जिसके बर्तन में विवेक आता है। विवेक इज द वॉइस ऑफ ट्रूथ एंड द वॉइस ऑफ द पार्ट ऑफ द सोल। हर एक व्यक्ति चाहता है मैं रियलाइज करूं मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। आप देखो बाहर की दुनिया में कितने लोग पूछते हैं पर्पस क्या है मेरा जीवन का, बट यू आर लिविंग योर पर्पस, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बैठ करके खुद को टाइम नहीं दिया है। और आप जब विवेक की बात सुनेंगे ना, तो जैसे कॉन्शियंस आपको बताएगा आपके पार्ट में क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपकी विशेषताएं क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है। अभी हम अर्जेंटीना में थे, तो वहाँ पे एक बुएनस आयर्स में एक बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर मिले, आए थे सेंटर पे मिलने के लिए। और आपको पता है इन द फिल्म वर्ल्ड इट्स शो हर बात में। और वो बहुत थक गया था और उसने बोला देखो हमको शो के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में, लेकिन लास्ट वीक मैं स्विमिंग पूल में बैठा था, उसके घर में स्विमिंग पूल है, इतना थका हुआ था कि ऐसे बैठ करके उसने बस भगवान को बोला कि मुझे एक साइन दो, अभी मुझे क्या करना है। तो जैसे वो बैठा और शांति में चला गया, उसके सामने एक शब्द आया और वो शब्द था ट्रूथ। उस समय इसको पता नहीं था ये क्यों शब्द आ रहा है, लेकिन उसके बाद उसने क्या प्रयोग शुरू किया कि हर सिचुएशन में वो ट्रूथ को पूछे मुझे क्या करना है, ट्रूथ मुझे क्या करना है। इवन सिंपल, जो कोई इसको पूछे तुम चाय कॉफी पिएगा, ट्रूथ को पूछता है मुझे क्या पीना है। इतनी हंसी की बात थी उस समय, लेकिन बात क्या है इसमें, जो चीज हम ट्रूथ के आधार पे करेंगे ना, हल्कापन महसूस होंगी, क्योंकि ट्रूथ मेक्स यू डांस, एक सिंधी शब्द है ना, सच भी तो नच। तो क्या कहते हैं हम कि व्हेन यू लूज ट्रूथ यू कैन लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड यू। तो वो भाई क्या करता था, हर एक सिचुएशन में, चाहे कोई उसको पूछता था अच्छा आपको इस प्रोग्राम में जाना है, इस इवेंट पे जाना है, ये कर, तो पूछता था ट्रूथ को, शुड आई गो। पहले पहले तो आवाज़ आता था नहीं जाएंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। अभी नहीं, मैं अपने ट्रूथ का सुनता हूँ ना, बस विवेक शांत है, मन शांत है, दिल आराम में है। तो हमने विवेक को ओवरराइड कर दिया है। बाहर की दुनिया में लड़ाई में फंस गए हैं, अंदर की दुनिया की जो राजाई है उसको गंवा दिया है। और दीपावली ये है कि देखो राम ने जीत पाया ना रावण पे, एक राज्य वापस लिया ना, तो हमारी आंतरिक अंदर देखो हमारे राज्य पे मैं मालिक हूँ, मन बुद्धि फीलिंग्स के ऊपर मैं मालिक हूँ। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है हमारे लिए अभी के समय अनुसार। वैसे भी दुनिया में कहते हैं कि लोग आईना इसके लिए देखते हैं कि वो बाहर का दिखाता है। जिस दिन आईना अंदर का दिखाना शुरू कर दिया मन की बातें, उस दिन वो आईना भी देखना बंद कर देंगे। कभी कभी पेनफुल होता है, लेकिन ये भी बात है, देखो एक लाइट है, आई विल यूज द वर्ड इन इंग्लिश, रिकग्निशन।
और मैं क्या कहूँगी, मुझे किसने पहचाना है। हमारा जो स्वमान है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, खुद की पहचान के आधार पर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट धन से नहीं बढ़ता है, पोजीशन से नहीं बढ़ता है, स्किल्स टैलेंट से नहीं बढ़ता है, खुद की पहचान से बढ़ता है। और जब हम ईश्वर ने हमने पहचाना, वो महसूस आती है, ईश्वर की दृष्टि हमारे पर पड़ी है। और चाहे मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, पैकेज दोनों का है, लेकिन मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उसने मुझे अपनाया है ना। जब वो फीलिंग और एक्सेप्टेंस होता है ना खुद का, तभी आपका स्वमान बढ़ सकता है। और मुझे ये बात बचपन से बहुत अच्छी लगती थी कि मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ, मैं ईश्वर के, परमात्मा की दृष्टि में समाई हुई हूँ। उसने मेरा रूप रंग नहीं देखा। आज देखो ये चमड़ी, कितनी पतली चमड़ी है, राइट? आप देखेंगे 99% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स इस चमड़ी के कारण है। आइडेंटिटी क्राइसिस है इस चमड़ी के कारण। आप इस चमड़ी को भी निकालेंगे, यू कांट टेल एन इंडियन फ्रॉम अ ब्राजीलियन फ्रॉम अ अफ्रीकन। तो कितनी फ्रेजाइल हमारी स्वमान बन गया है। और इस चमड़ी के ऊपर पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। हाँ, लेटेस्ट क्रीम, स्किन क्रीम पहनेंगे तो वो नहीं होगा, आप यंग रहेंगे तो आप हैप्पी रहेंगे। यू गेट माई पॉइंट? इतना धोखा खा रहे हैं हम। तो इट्स टाइम टू वेक अप। इट्स रियली टाइम टू वेक अप एंड टू गेट रियल। हु एम आई बियॉन्ड द स्किन, बियॉन्ड द मास्क्स, बियॉन्ड द रोल्स। तो आई थिंक समवेयर इनसाइड एक वार्तालाप का बदलाव होना चाहिए, क्योंकि खुद के साथ एक संबंध रखना, हम औरों के साथ संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन खुद के साथ कहाँ से शुरू करें? पहले तो खुद को टाइम देना चाहिए। मैं आपको बोलती हूँ, हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन टाइम नहीं देती तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो खुद को पहले टाइम दो, देखो, अंतर्मुखी होकर के देखो, मेरे मन में कौन सी भावनाएं प्रकट हो रही है, मेरा विवेक मुझे क्या कह रहा है, और फिर मेरे कर्म क्या कर रहे हैं। बस ये 3 बातें पहले तो देखो। और जैसे आप ये देखते हो और अंदर का वार्तालाप शुरू करते हैं ना, तो एक प्रकार का अलाइनमेंट शुरू होता है। हमारे जो फाउंडर थे ब्रह्मा बाबा, उन्होंने ये प्रयास बहुत किया था शुरू में। मन के साथ वार्तालाप, बुद्धि के साथ वार्तालाप, खुद के साथ वार्तालाप, जैसे डेवलप अ कॉन्वर्सेशन विथ योरसेल्फ। पता है कि अंदर से इमोशंस बहुत आते हैं, इमोशंस का ओशन बन जाता है कभी, लेकिन उस इमोशंस में कमल फूल समान बनना, अपनी प्योर फीलिंग्स जागृत करनी, ये हमारा काम है। दिस इज द वर्क ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अ स्पिरिचुअल फोकस, spiritual vision and a spiritual attitude. तो real Diwali is awakening subtle spirituality. तो चलो रियल दिवाली ठीक है, बट जब दिवाली आती है तो जैसे अकेले नहीं आती है, 4-5 और फेस्टिवल्स लेके आती है। लाइक धनतेरस है, काली चौदस है, फिर दिवाली है, फिर उसके बाद भाई दूज है। अच्छा ये सब तो छोड़ो, फिर उसके 15 दिन के बाद और एक दिवाली आती है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, बीच वाली दिवाली, 3 बहनें। तो ये सब में भी हमारा रोल, उसमें कुछ है, उसके पीछे राज? या देखो, एक है कुछ त्योहार को रस्म रवाज के अनुसार मनाना, ये रस्म रवाज है कई बातों का, और एक है त्योहार रहस्य समझ के मनाना। तो ये हमारा काम है, उसका राज समझा के उसके ऊपर हमको अपने आप को सेट करना है। देखो, हमने शो में बहुत आ गए हैं, जैसे आपने पहले बताया, पैसे बहुत खर्चे करते हैं, 1-2 फायरवर्क के बजाय पूरा एक कमरा भर करके फायरवर्क्स जलाते हैं। तो इसमें टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट जाता है। और जहाँ वेस्टेज होता है, लाइट कैसे जागृत रहेगी?
तो एक्चुअली दिस होल फेस्टिवल प्रोसेस इज टीचिंग अस सिंप्लिसिटी, क्लेनलीनेस, अंदर बाहर साफ, ऐसे नहीं अंदर और बाहर कुछ और। फिर अपना स्वतंत्रता, फ्रीडम, अंदर की फ्रीडम, अंदर की राजाई, और फिर बाहर संबंध व्यवहार में दया भाव, दुआएं लो दुआएं दो, एक फॉरगिवनेस, क्षमा भाव पैदा करो। क्योंकि देखो आप, लाइट जब एक लाइट दूसरी लाइट को जगाती है तो एक भावनाएं की बात है। मैं आपके सामने जैसी भावना लेकर के बैठी हूं वही भावनाएं आपके दिल में प्रकट होंगी, क्योंकि फीलिंग्स एक्टिवेट फीलिंग्स। लेकिन मेरी फीलिंग्स में भी क्लेनलीनेस नहीं है, वैर भाव है, दुश्मनी है, ईर्ष्या भाव है, तो क्या कैसे बाजू वाले के दिल में प्रेम भावना जागृत होंगी? तो यू नो व्हेन वी सेलिब्रेटिंग ऑल ऑफ दीज फेस्टिवल्स, नो प्रॉब्लम, आप अपना रस्म रवाज कर, लेकिन रहस्य को समझो। एंड इट्स सिंपल, एक्चुअली सिंपल बहुत है, सिंपल, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। मीन्स किसी ने मिठाई दिया तो उसको दो, नहीं दिया तो मत दो। सिंपल। लेकिन आप जब मिठाई दो, ना फॉरगिवनेस है ना, नहीं दिया उसने तो लेकिन हम नहीं देंगे। देखो मिठाई दो, लेकिन कुछ मीठे शब्द भी साथ साथ उच्चारो ना उसके साथ। उसने नहीं दिया ना, हाँ? उसने नहीं दिया तो तो उसने- हिसाब पूरा करें। देखो। चोपड़ा नहीं दे के हम नहीं, देखो आजकल हमारे संबंध में एवरीथिंग हैज बिकम ट्रांजैक्शनल। इवन रिलीजन इज ट्रांजैक्शनल। भगवान इतना पूजा करूंगा, मेरे को इतने बच्चे चाहिए। एवरीथिंग इज अ ट्रांजैक्शन। मैंने सोचा ये हमारी ट्रूथ, हमारी सिंसेरिटी, हमारी प्योरिटी कहाँ गई इसमें? क्योंकि लाइफ रिस्पॉन्स टू प्योर भावना, और हम जहाँ तक ट्रांजैक्शन के हिसाब से चलेंगे ना, तब तो खुशी, प्रेम, ओम शांति, लाइट भी ओम शांति। तो ये एक खुद की पहचान की बात है। मेरी धारणाएं क्या है, मेरे प्रिंसिपल्स क्या है। हमारी दादी जानकी, शी वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। शायद आप में से किसने दादी जानकी को देखा है? हाथ उठाकर। हाँ, बहुत सारे लोगों को देखा है। बैरनेस जी, यू बीन अ क्लोज फ्रेंड ना ऑफ दादी। दादी जी हमारी, आप देखो 61 की उम्र में आए थे इंडिया से यहाँ पे, और इस उम्र पे तो आप इंडिया में तो सब वानप्रस्थ लेते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। शी स्टार्टेड अ न्यू जॉब डिस्क्रिप्शन, विश्व की सेवा। बिटवीन 61 एंड 104 पूरा विश्व का भ्रमण किया था, एटलीस्ट 1.5 टाइम्स, और 120 देशों में सेवा केंद्र खोलने के लिए निमित्त बनी। अभी आप सोचो कि ये किसके आधार से होता है ये कार्य, और समझो हर एक कल्चर के साथ एडजस्ट होना, भाषाओं के साथ, रिलीजन के साथ। और वेस्ट में तो पता है ना, इतना जैसे कभी कभी ईश्वर के प्रति इतना मान नहीं रहता है, बहनों के प्रति जैसे भारत में रहता है इतना मान रहता है। वो हम दादी, पहले तो जानकी जानकी बोलते थे, हाँ? फिर हमने सिखाया दादी बोलो, ये रिस्पेक्ट है, दादी जी बोलो। तो ऐसे कल्चर में किसी का दोष नहीं है, ये कल्चर की बात है। तो उसको डिसरिस्पेक्ट सामना, रिजेक्शन भी मिला, इतना कुछ सहन किया दादी ने। लेकिन दादी जी ने ऑलवेज एक मंत्र कि कैसे भी करो, आई एम गोइंग टू किल यू विथ माई गुड विशेस, ये मेरा धर्म है। मैं शुभ चिंतक, मेरी शुभकामनाएं इतनी है कि आप मेरी शुभकामनाएं का खाता से आप खा सकते हैं। ये शुभकामनाएं से आपकी जीवन बन सकती है। तो इसमें क्यों ट्रांजैक्शन करें? आपको धन कमाना है तो इवन इकोनॉमिकली until you invest कुछ मिलेगा नहीं। तो गिव, कीप गिविंग। आपका क्या जाता है? ये तो आपकी बड़ी दिल की बात है ना, आपका क्या जाता है? और बोल उस देता नहीं है तो बेचारे के पास है ही नहीं, तो आप और दो ना, ताकि उसका खजाना भरपूर हो। हाँ, दिस इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, क्योंकि लाइफ में आपके सामने बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी।
मैं जब लॉ पढ़ रही थी तो व्हेन आई वाज इन वर्क एक्सपीरियंस, तो जो CEO मेरे पास था उसने मुझे साफ बताया था कि यू हैव 2 थिंग्स अगेंस्ट यू, वन you're a woman and secondly you're Asian, very clearly. मैंने इसको थैंक यू बोला, मैंने बोला आई सी द रियलिटी, द प्रेजुडिस, द रियलिटी. हम जब इस देश में आए थे पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, तभी मेरे पास शब्द नहीं थे रेसिज्म के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए, और वो ही व्यवहार हो रहा था हमारे साथ. दुख तो होता था दिल में, ये क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ किया नहीं इनको, तो क्यों ऐसे मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं. लेकिन बचपन से हमारा योग का अभ्यास बहुत था, तो सवेरे उठ करके एक दिन मैं शांति से बैठी और 3 लोग थे खास करके जो मुझे बहुत तकलीफ दे रहे थे. तो मेरे मन में एक तीनों व्यक्ति माना इमर्ज हुए. मैंने बोला ये क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपका बिहेवियर मेरे साथ ऐसे क्यों है. अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपका बिहेवियर, तो आपको भी नहीं समझ आ रहा है आप क्यों ऐसे कर रहे हो. फिर मेरा और चला, अच्छा इनको समझ में नहीं आता होगा वो क्या कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ प्रभाव होगा, कुछ पेन है इसके पीछे जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. तो फिर वो धीरे धीरे मेरे अंदर से वो जो क्वेश्चन था, क्यों क्या का पेन था, धीरे धीरे वो मर्सी का रूप लेने लगा कि हाँ इनके जीवन में कुछ होगा, कुछ प्रभाव है, कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि दे कांट हेल्प इट, इनको तो भाई मर्सी चाहिए. तभी मैंने 1 मास का प्रोजेक्ट शुरू किया, सवेरे लेकर के आधे घंटे के लिए 6 से 6:30 बजे सवेरे हमारा योग का, स्टडी के पहले योग का टाइम होता है. तो उस समय पे मैं आत्मिक भाव में रह करके परमात्मा को याद करके इतनी प्रेम भरी भावनाएं, शुभ भाव कामनाएं पैदा करती थी और भेजती थी. हियर टेक रेड कारपेट ऑफ गुड विशेस, आपका सारा दिन अच्छा रहे. 1 मास के बाद का रिजल्ट क्या निकला, उस 3 लोग में एक तो वो कॉलेज ही छोड़ के चला गया. बाप रे, आपको गुड विशेस. पूरी करे. और दूसरे 2 जो थे वो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन गए. आज दिन दोनों ने शादी कर ली और हमारे फैमिली फ्रेंड्स है आज दिन थे. मैंने फर्स्ट हैंड देखा है कि जब हम रियली आत्मा को देख सामने रख करके हम शुभ कामनाएं भेजते हैं, प्यार की भावनाएं भेजते हैं, उसका असर पड़ता है. क्योंकि वो शुभ कामनाएं केवल वो आत्मा के लिए नहीं है, मेरी वृत्ति को शुद्ध रखने के लिए है. यू अंडरस्टैंड. और मेरी वृत्ति जब शुद्ध रहती है, ये मेरा प्रोटेक्शन है, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं होता है. तो हमने ये प्रैक्टिकल प्रूफ देखा है. लेकिन क्या है आजकल की सोसाइटी में, वी गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू ग्रोस एक्सप्रेशन, वर्ड्स, एक्शंस, और हम फीलिंग्स और एटीट्यूड की बात नहीं करते हैं. लेकिन एटीट्यूड इज 80% ऑफ कम्युनिकेशन. आपको पता है ना कि वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं, वाइब्रेशन से वातावरण बनता है, वायुमंडल बनता है. दिस इज अ वेरी पावरफुल फॉर्म ऑफ सर्विस. हमारी दादियाँ जब कोई आता था सामने प्रॉब्लम लेकर के, ऐसे नहीं कि शब्द ज़्यादा सुनती थी, ये इतना बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, हम ट्रांसलेशन करते करते इतना सारा बोल रहा है, पता नहीं किसके सामने बोल रहा है. लेकिन दादियों का यही काम था, आत्मा को सुनने का और आत्मा को संतुष्ट बनाने का, वाइब्रेशंस देने का. ये वृत्ति का काम है. तो हम जब संपर्क में आते हैं, चलो भाई दूज मनाते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर से बस किसी को मिठाई खिलाओ, ये अलग बात है. लेकिन एक गुड विश तो, दिल से गुड विश तो उस दिन तो देते हैं. उस दिन देखिए हम कहते हैं जैसे जयंती बहन हर रोज की प्रैक्टिस, तो हर रोज दिवाली मनाएंगे. बिकॉज दिस इज अबाउट योर लाइफ, दिस इज नॉट अबाउट अ फेस्टिवल. द फेस्टिवल इज सिंबॉलिक for you to create a culture in your life, to make it a lifestyle of light and love.
पर दीदी क्या आज देखो जैसे कि आज पूरे विश्व में कई जगह पर कई देशों पर लड़ाइयाँ चल रही है, लोगों को कईयों को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, और जैसे आपने कहा पूरे विश्व के लिए हमारे लिए एक जैसी भावना होनी चाहिए। तो ऐसे समय में फेस्टिवल्स मनाना, पटाखे तोड़ना छोड़ना, ये सब क्या ये अप्रोप्रिएट लगता है, या हम कैसे दिवाली मनाएं जो कोई अगर देखें कि इस देश में दिवाली मन रहा है तो भी उनको ऐसा नहीं लगे हम तो यहाँ भूखे बैठे हैं और ये लोग देखो, तो किस तरह से उनको हेल्प कर सकते देखो, हैं? ये है ह्यूमन वर्ल्ड के कायदे। एक तरफ दुख, एक तरफ सुख, एक तरफ हार, एक तरफ जीत, एक तरफ, दिस इज द पोलैरिटी ऑफ आवर वर्ल्ड। ठीक है, अभी मैं हम भूल गई कि मैं एक लॉ पढ़े हुए स्टूडेंट से पूछ रही हूँ। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते वन साइज फिट्स ऑल। ठीक है, लेकिन व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ दिवाली? और हाँ, समय देख करके, माहौल देख करके अपने आप को एडजस्ट करना ये भी ज़रूरी है। और मैं कहूँगी इसके एडिशन में, समझो आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं आज, ठीक है, ये मनाने के लिए। आप लोग कल आकर के शाम को 1 घंटा योग का दान दो विश्व के लिए, शांति का दान दो विश्व के लिए, प्रेम का दान दो, तब हम कहेंगे वी आर सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ दिवाली। क्योंकि आपका खाना शायद वहाँ पहुँचेगा या नहीं, आप जो कपड़े रखेंगे वो शायद वहाँ पहुँचेगा या नहीं, आपको पता नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन ज़रूर पहुँचेंगे। जब भुज का जो अर्थक्वेक हुआ था ना, तब उस समय हमारी बड़ी दादी इंडिया में, हमारा हॉस्पिटल भी था, डॉक्टर्स को भी मोबिलाइज़ किया था, ट्रक भर के सामान जाता था, लेकिन साथ साथ में दादी जी ने सब भाई बहनों को बोला कि 4 घंटे की भट्टी करनी है हर रोज़, मेडिटेशन के वाइब्रेशन पहुंचाना है। तो किसी ने दादी को पूछा कि दादी क्या हम मेडिटेशन करते तो क्या फ़र्क पड़ता है उसको? तो दादी ने बोला देखो, ये वाइब्रेशन को, डिस्टेंस इज़ नो मीनिंग टू वाइब्रेशन। आप जिस वाइब्रेशन को फैलाएंगे ना, तुरंत 1 सेकंड में जो कोई वहाँ याद करेगा या कैच करेगा, उसको होप, उसके दिल में होप पैदा होगा, उसका दिमाग काम करेगा, उसके दिल में हल्कापन होगा। ये एक गिफ्ट है, वाइब्रेशन की गिफ्ट है। हम आजकल संबंध में भी ये गिफ्ट की लेन देन देखते हैं। आपने किसके प्रति सोचा और कल उसने फ़ोन किया। मैं आपको एक दूसरी बात बताती हूँ कि अभी जस्ट हम फ्रांस में गए थे, तो एवरी ईयर इन पेरिस देयर इज़ एन इकोनॉमिक एंड सोशल, वुमेन्स इकोनॉमिक एंड सोशल फोरम, जो पूरे विश्व से टॉप बिजनेस वुमेन आते हैं। तो हमारा जो एक कॉन्टैक्ट थी, शी मैनेजेस द लैटिन अमेरिकन चैप्टर फॉर दिस फोरम। तो शी ब्रॉट अ क्रीम ग्रुप ऑफ 15 women, top leaders, you know, like CEO of Greenpeace Brazil, no, Greenpeace for Latin America, somebody who works for the largest bank in Brazil, एक दूसरी बहन थी, she runs a company called Unity Brazil. It works with climate and humanitarian disasters. And she works with 3,000 NGOs. तो जब बाढ़ आता है, फेमिन आता है, अर्थक्वेक आता है, जो भी क्लाइमेट डिजास्टर, तो मदद करना, जिनको मदद जाए वहाँ पे मदद पहुँचाना, ये इसका काम है। तो टू डेट शी हैज़ 13 million volunteers working under her. काम इतना करती है, अमेजिंग। तो इसमें ये जो माता थी, जो ग्रीन पीस की CEO थी, उसने एक कहानी मुझे बताई। शी इज़ ब्राज़ीलियन कैथोलिक, ठीक है, ईश्वर में बहुत मानती है, बहुत भावनाएं हैं। आप लैटिन अमेरिका में जाएंगे ना, वहाँ पे आपको, आप भगवान शब्द नहीं यूज़ करेंगे ना, तब तक उनको लगता नहीं है, दिल की संतुष्टि नहीं आती है। यहाँ पे ज़्यादा भगवान शब्द यूज़ करेंगे ना, तो लोग आपको देखते रहेंगे, बिकॉज दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड गॉड इज़ अ भावना, दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड लिटिल बिट गॉड इज स्टिल एन इंस्टीट्यूशन। तो मैं देख रही हूँ, इतनी भगवान की बातें कर रही थी, लाइट की बातें कर रही थी, फिर बता रही थी, शी वॉज टेलिंग दैट शी हैज़ अ 26-year-old सन, 26 साल का सन। तो उसको प्रेरणा आई, मुझे भारत जाना है, इंडिया जाना है, और मुझे 1 मास का साइलेंस करना है। अब सोचो, हमारे यूथ भी इतना नहीं बोलते हैं। तो कहते हैं, शी सेड आई वॉज सो नर्वस। तो वो गया इंडिया,
कुछ आश्रम में गया तो वहाँ से फ़ोन किया, मम्मी नाउ आफ्टर 30 days वी विल स्पीक। तो इस मम्मी को तो पैनिक अटैक हुआ, अरे 30 दिन के बाद भी कल कुछ हुआ तो फिर मैं, डोंट वरी आई विल प्रे फॉर यू बट आफ्टर 30 days वी विल स्पीक। माना इतना जैसे उसका विश्वास था, हाँ, कि मैं मेडिटेशन में जा रहा हूँ, साइलेंस में जा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। फिर इस माता को क्या हुआ, 15 दिन के बाद उसको आई की सर्जरी होने वाली थी और ये एक इमरजेंसी सर्जरी थी, किसी को पता नहीं था उसको। अगले दिन डॉक्टर ने बोला यू हैव टू डू दिस नाउ। तो रात को बहुत इसको भय शुरू हुआ क्योंकि आँख की बात है और उसको चिंता शुरू हुई। और आप मानो नहीं, कहती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 o'clock उसका फ़ोन आया, कहता है मम्मी आई डोंट नो वाई आई रिमेंबर्ड यू लास्ट नाइट विथ लॉट ऑफ लव, आई जस्ट वॉन्ट टू से आई एम सेंडिंग यू लव। वो ऑपरेशन के दिन पे तो कह रही थी आपको कुछ पता है क्या? कहते क्या पता है, मेरी आज ऑपरेशन होने वाली है। तो उसको इतना जैसे माँ को इतनी फीलिंग आई कि देखो राइट टाइम पे उसने फ़ोन किया, हालांकि उसको पता भी नहीं था। और फिर उसने बोला अभी 15 दिन के बाद हम वापस बात करेंगे। तो वो उसको रियलाइज़ क्या हुआ कि साइलेंस में कनेक्शन होता है। और मैं क्या चाहती थी, मोहवश मेरी चिंता चलती थी, नर्वस, मैं मोह चाहती हूँ, मोहवश मैं वरी कर रही हूँ इसलिए मुझे 10-12 दिन में फ़ोन कर। लेकिन वो साइलेंस में जा कर के और राइट टाइम पे राइट काम हो रहा था। तो उसको बहुत अंदर से ये रियलाइजेशन आई कि हम क्या चाहते हैं और एक्चुअली अंडरनीथ हमारी अवस्था, वी आर ऑल कनेक्टेड। लेकिन उस कनेक्शन पे विश्वास रखना, फेथ रखना, उस साइलेंस की शक्ति से होती है। एंड देन वी स्टार्ट टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। अपने पेरेंट्स और बच्चे की बात की, तो जैसे अभी 2 दिन पहले चिल्ड्रन क्लास था, तो 1-2 बच्चों से मैंने पूछा दिवाली आ रही है आप क्या कर रहे हो, तो आधा तो उनको समझ में ही नहीं आया कि दिवाली क्या है। फिर थोड़े समय के बाद कहा यह फायरवर्क पूजा। तो आज के समय में जो क्योंकि पेरेंट्स को ही पता नहीं होता है कि दिवाली कैसे मनाएं या क्यों मनाएं, अपने पेरेंट्स को देख के मना रहे हैं। तो हम कैसे बच्चों को ग्रो करें जो वो किसी धर्म में नहीं फंसे परंतु उसके मीनिंग को समझते हुए उसको सेलिब्रेट करें, कैसे हम उनको सिखाएं और कैसे उनको ग्रो करें जो फेस्टिवल्स के साथ साथ वो बड़े हो और उसको अच्छे से समझे भी। देखो, एवरी पेरेंट देयर कम्स अ टाइम फॉर द चाइल्ड कि एक तरफ से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वैल्यूज़ सिखाने की, लेकिन फॉर चिल्ड्रन दे लर्न थ्रू एग्जाम्पल। शब्दों द्वारा नहीं सीखते हैं, वो आपका चरित्र को देख के सीखते हैं, आपको ही कॉपी करते हैं। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर अब्जॉर्बिंग वर्च्यू और वो देख रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हो। तो एक तरफ से आप सिखाएंगे ये इसका ये मीनिंग है, ये करो ये करो, दूसरे तरफ से आपका चरित्र है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नाउ व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स टू बिकम अ टीनेजर, सोचने का शुरू होता है, उसका विवेक काम कर रहा है, वो खुद के लिए डिसीजन ले रहा है, माना वो आत्मा आपको कह रही है अभी थैंक यू फॉर ऑल योर इनपुट, अभी आई एम रेडी टू मेक माई ओन डिसीजन। तभी आपका रोल में बदलाव आता है। अभी हम वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं ये हमारे ऊपर है। माँ का रोल खत्म और फ्रेंड का रोल शुरू होता है राइट। और ये फ्रेंड क्या होता है, साइड में खड़े होकर के पूछता है, टाइम देता है, कंपनी देता है, फोर्स नहीं करता है कुछ। समझ में आई बात? और क्या है जो अंदर की खूबियाँ है, जब इस व्यक्ति का विवेक काम करेगा और हम उसको मदद करेंगे हर बात में उसकी सिग्निफिकेंस को समझ। अच्छा आज आपको क्या हुआ, पूछो इसको, आज स्कूल में क्या किया, आज कॉलेज में क्या किया, आप कौन सी ऐसी बात अच्छी लगी, कौन सी ऐसी बात सुधार आपको लगा कि मुझे और इसमें सुधार चाहिए। माना उसको मदद दो अपनी विवेक को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वही रास्ता है
that will emerge its specialities. You know? तो this is a question of relationship and education. लेकिन फॉर्म, एजुकेशन का फॉर्म में बदलाव होता है. छोटे बच्चों के लिए वी हैव टू सेट अ गुड एग्जाम्पल, और जब बड़े होते हैं तभी वी हैव टू बी वाइज गाइड ऑन द साइड. ऐसे नहीं मैं जो बोलो करना है, क्योंकि आप वो वृत्ति से काम करेंगे ना और ही दूर भाग जाएगा बच्चा. मुझे पता है आप यूथ की इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है ब्रह्मा कुमारीज की, और काफ़ी अच्छा हमने भी आपके साथ रिट्रीट्स की है और काफ़ी अच्छे अनुभव भी है यूथ के साथ. तो आज के ज़माने के हिसाब से यूथ का क्या रोल है? दिवाली किस नज़र से उनको देखना चाहिए या कैसे उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, और पेरेंट्स को कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए? पेरेंट्स का तो हमने बता दिया था, ठीक है. पेरेंट्स हेल्प तो करना चाहिए, दे हैव टू लिसन. फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लिसनिंग. लिसन टू अंडरस्टैंड. बस ये एक आत्मा है और ये परमात्मा की प्रॉपर्टी है. पहले आप केवल इसकी ट्रस्टी हो, शरीर का ट्रस्टी हो. तो इस आत्मा के डीएनए में क्या है, उसकी यूनिकनेस क्या है, पहले वो समझो. तो ताकि उसको ये फीलिंग आए किसी ने मुझे अंदर से देखा है, पहचाना है. हल्कापन वहाँ से शुरू होता है, लाइटनेस वहाँ से शुरू होता है, राइट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट फॉर यंग पीपल टुडे दे नीड अ कंपस. और क्या है, दिवाली के समय पे इफ यू लुक एट द ऑर्डर ऑफ दिवाली, ठीक है, वी लुक एट अकाउंट बुक्स. Young people have to be very conscious of their karma. What is my karma right now? How am I using my time, money, energy in one day? ये बहुत ज़रूरी है. Because जितना हम इसको देखेंगे ना, तो then we will start to reflect. मेरे values क्या है, मेरा purpose क्या है. Second aspect, encouraging young people to reflect on what they need to remove or finish inside. हमको एक्चुअली चरित्र बढ़ाना, कैरेक्टर डिवेलप करना है. तो टू डिवेलप योर कैरेक्टर यू नीड अकाउंटेबिलिटी. अंडरस्टैंड? आप चेकिंग नहीं करेंगे तो कैसे बदलाव आएगा? बस सारा टाइम खाओ पियो मौज करो, नो प्रॉब्लम. लेकिन चरित्र के आधार से सब कुछ दुनिया में आपके पास आता है. व्हेन योर कैरेक्टर हैज लाइट इन इट, एवरीवन विल लिसन, एवरीवन विल फॉलो. Your actions can have a powerful impact. So somehow, somewhere along the line, the focus on character in Charitra has been lost. Right? So character, my karma is creating my character. फिर आती है एक्चुअल दिवाली डे, जिसमें हम मनाते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं. लेकिन लक्ष्मी कब आएंगी? हाँ, ऐसे नहीं कि लक्ष्मी थोड़े समय के लिए आकर के चली ना जावे. ऐसे हम क्या करें? दिल, मन, वृत्ति को साफ. वी हैव टू मेक अ कमिटमेंट टू ट्रूथ. अंडरस्टैंड? डीप डीप ट्रूथ कि कुछ भी हो जाए मुझे दिल से, विवेक से जीना है. क्योंकि इफ ट्रूथ इज माई कंपेनियन, गॉड इज माई कंपेनियन. फिर हम नया साल मुबारक करते हैं, ठीक है, एक नया व्रत लो, न्यू कमिटमेंट ले लो. फिर उसके बाद भाई दूज सेलिब्रेट करते. माना जो भी हमारे संबंध में कुछ हुआ है, पुरानी बात है, उसको छोड़ करके क्षमा भाव पैदा करो. लिव अ लाइफ ऑफ बेनेवलेंट गुड विशेस. यू नो, तो दिस होल फेस्टिवल, इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोसेस इफ इट्स डन कॉन्शियसली. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मीनिंगफुल प्रोसेस. और ये क्या है, ये 5 दिन के लिए नहीं है, ये एक वृत्ति का बदलाव लेके आती है. वास्तव में हमारे सारे प्रॉब्लम्स हमारी वृत्ति के आधार से होते हैं. अब देखो प्रवृत्ति में, इसके साथ अलग वृत्ति, इसके साथ अलग वृत्ति, इसके साथ अलग वृत्ति, इसके साथ अलग वृत्ति. अब इन सारे वृत्तियों से पार जाना है. आत्मा के चित्त में शांति, प्रेम, पावर, ट्रुथ है. वो चित्त जैसे एक तालाब होता है ना, एक लेक, बिल्कुल क्लैरिटी होती है जब बिल्कुल शांत होता है. और वृत्तियाँ हमारी, अलग अलग वृत्तियाँ हमारी एक जैसे लहर के माफिक होती है. तालाब के ऊपर जो लहर आती है ना, तो हमको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है अंदर,
चित्त के अंदर क्या है। तो फिर खुद में आत्मविश्वास नहीं होता है। आत्मविश्वास न होने के कारण स्वमान नहीं बढ़ता है, क्योंकि आपको अंदर की क्लैरिटी नहीं है, मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं। हम वृत्ति के लेवल पे लहर चला रहे हैं, औरों की वृत्तियां का प्रभाव हो रहा है, लेकिन उसको शांत करके अपने चित्त को देखना, अपने चित्त को साफ करना, ये है इग्नाइटिंग स्पिरिचुअलिटी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, सभी को पसंद आया कि कैसे दिवाली मनानी है। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगी और उसके बाद आप हमको कैसे हमारी वृत्ति को मेडिटेशन से परमात्मा से कनेक्ट होकर क्लियर करें, वो थोड़ा सा अभ्यास कराएंगे तो अच्छा रहेगा। परंतु एक लास्ट क्वेश्चन, आपने सिर्फ दादी जानकी ही नहीं बल्कि दादी प्रकाश मणि जी के साथ भी और दादी गुलजार जी के साथ भी आपने काफ़ी समय बिताया है, और जयंती दीदी के साथ भी। आप जैसे दादी जानकी के ने आपको बड़ा किया है, तो अगर दादी कैसे दिवाली मनाती थी, और आप ऐसी कौन सी एक बात जो दादी जी की हम सबको, क्योंकि आज हमारी दिवाली सेलिब्रेशन भी है, आज से हमारा नया साल, एक व्रत भी लेंगे, तो कौन सा एक ऐसी बात है या दो बातें हैं जो आप चाहेंगे कि हम आज से हमें धारण करें तो सब सच्चाई भी हो जाएगी और सफाई भी हो जाएगी। देखो, जब हम मधुबन में, हमारा हेडक्वार्टर्स है, जब मनाते थे शुरू में, आजकल तो बहुत धूमधाम हो गया है, जैसे वर्ल्ड में सब कुछ और बढ़ता जा, लेकिन सिंप्लिसिटी में हम शुरू में बहुत मनाते थे। दादियाँ हमारे से हमारी कमज़ोरी लिखवाती थी, आप ये कमज़ोरी लिखो और प्रॉमिस करो कि आज के दिन के बाद अब इसको टच नहीं करेंगे। ये एक बात होती थी। दूसरा, और फिर उसके बाद फिर दीपक जलाओ। सिंपल प्रैक्टिसेस, लेकिन ये हमको कराती थी। हमने एक बारी बड़ी दादी को पूछा था कि दादी, बड़ी दादी मानी हमारी दादी प्रकाश मणि, शी वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आफ्टर ब्रह्मा बाबा पास्ड अवे। तो हमने दादी को पूछा कि दादी, आप इतने बड़े संस्था के हेड हो, आपके सामने इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट, इतनी सारी बातें आती हैं, इतनी आत्माएं आती है अपने प्रॉब्लम्स लेकर के, तो आप कितने हल्के कैसे रहते हो? क्योंकि मुझे लाइटनेस का बहुत है। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहती है, देखो, मैं ये मानती हूँ कि एक सारा संसार और जो भी बातें खेल माफिक है, एक खेल है, एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो आज एक्ट 1 सीन 1 की शूटिंग पूरी हुई, कल एक्ट 2 सीन 2 की शूटिंग शुरू होगी। सारा फिल्म एक दिन में तो नहीं करना है ना, तो आराम से जियो, कल और शूटिंग बढ़ेगी और ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर दूसरी बात ने क्या बताया, कहते देखो, जो भी आत्माएं आती है दादी के सामने, वो सभी परमात्मा के बच्चे हैं, तो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं दादी सुन लेती है। रात को सोने से पहले मेडिटेशन में ईश्वर को दे देती है, देखो ये ले लो आपके बच्चे के प्रॉब्लम्स, और हल्का दिमाग लेकर के सो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे सवेरे जब मेडिटेशन करती है ना, सवेरे उठ करके, तभी जो जवाब देना है या कुछ प्रेरणा मिलने, उसी समय उसको कैचिंग मिलता है ईश्वर से। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल है, कि हम किस तरीके से हम रात को सोते हैं, किस तरीके से हम सवेरे उठते हैं। These, you bookend your day like this, you will have no problems in the middle of the day. You know, आजकल तो हम उठेंगे सीधा मोबाइल फोन, राइट, कितने ईमेल्स, कितने सोशल मीडिया फीड्स, सीधा मोबाइल फोन। आपने उस समय क्या किया? आत्मा की लाइट को एक जड़ चीज में पावर दे दिया। जैसे आप आत्मा की लाइट से मोबाइल फोन को चार्ज कर रहे हो, तो सारे दिन में आपको कैसे महसूस होगा कि मैं अपने मन, बुद्धि और दिल की मालिक हूँ, क्योंकि दिन की शुरुआत में आपने अपनी पावर दे दी। आजकल साइंस भी कहती है ना कि देखो, द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑन वेकिंग अप, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप फीलिंग्स क्रिएट करते हो,
उसका पूरा मूड बनता है दिन का। तो क्यों नहीं सवेरे उठ करके ऐसे शुद्ध संकल्प करे खुद के लिए, दुनिया के लिए, ऐसी भावनाएं प्रकट करे कि सारा दिन मेरा मूड अच्छा रहे। और आपको पता है मूड कितनी पावरफुल चीज़ है। मूड अच्छा रहता है, नो प्रॉब्लम, बारिश है, दिस है, नो प्रॉब्लम। मूड बिगड़ता है तो एवरीथिंग प्रॉब्लम। आप ऐसा कुछ मेडिटेशन करके सिखाएं कि जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तब तक किसी का मूड ऑफ नहीं होगा। हो सकता है, कोशिश तो कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हो नहीं सकता। हाँ, हो भी जाएगा, क्योंकि आज दिवाली का दिन है और इतने अच्छे माहौल में, इतने अच्छे जगह पर आप बैठ के संकल्प कर रहे हो तो सकता है जैसे सत्यनारायण की कथा में है ना, आपको तथास्तु का वरदान भगवान से मिल जाए। हाँ, तो हो ज़रूर सकता है। तो अभी हम 2 से 3 मिनट थोड़ा कमेंट्री से हमें मेडिटेशन। ज़रूर ज़रूर। चलो सभी थोड़ा अलर्ट होकर के बैठे। और एक गहरा श्वास लो और छोड़ने के समय में जो भी बॉडी में टेंशन है उसको श्वास द्वारा निकालो। दो तीन ऐसे गहरे श्वास लेकर के पूरा अपना ध्यान इस वर्तमान समय में लेके आओ। पास्ट इज पास्ट, अभी फ्यूचर नहीं हुआ है। मैं इस वर्तमान समय में, इस माहौल में, शांति का, प्यार का माहौल में बैठी हूँ। Feel the peace of this moment now. अभी अपने श्वास को ऑब्जर्व कीजिए। और उस श्वास को फॉलो करके उसका सोर्स तक पहुंचिए। Follow your breath to its source. और अपना ध्यान अंदर लेके अंदर खुद को महसूस कीजिए, मैं कौन हूं। अंदर की चैतन्य शक्ति को महसूस कीजिए जो इस श्वास को चला रही है। ये चैतन्य शक्ति इस शरीर को प्राण देती है। इन कानों द्वारा मैं सुन रही हूं। अभी इस शक्ति को एकाग्र करके विजुअलाइज कीजिए कि पूरी शक्ति नीचे से ऊपर आ रही है, पैर से ऊपर पूरी शक्ति, हाथ से ऊपर, थ्रू योर नेक अप इनटू योर फेस। और ये पूरी शक्ति एकाग्र होकर के एक बिंदु बन जाती है, एक सितारा प्रकृति के बीच में। चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु। थोड़े समय के लिए step away from your stories, step away from your self-image and become the star of light. मैं आत्मा ज्योति बिंदु
शांति के सितारा हूँ। Now take your right hand and put it over your heart. इतना एक प्रेशियस हृदय है, दिल है, इस आत्मा की प्रॉपर्टी है ये। प्रेशियस हार्ट, प्रेशियस सोल। और अभी आप खुद के लिए एक शुद्ध संकल्प क्रिएट करो, एक गुड विश क्रिएट करो खुद के लिए, दिल से। अभी एक शुद्ध संकल्प क्रिएट करो अपने फ्रेंड्स, फैमिली के लिए, जो भी आपके संपर्क में है। और अभी दुनिया के लिए गुड विश क्रिएट करो। ये गुड विशेस की लाइट फैलाओ। यही हमारी सच्ची दिवाली है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर और काफ़ी डीप था। एक्सप्लेनेशन भी बहुत सरल और धारणा करने जैसा था। तो थैंक यू गोपी बहन, समय निकाल के आने के लिए और इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको दीपावली की शुभकामनाएं, साथ साथ नया साल भी आपको मुबारक हो और भाई दूज भी। तो लेस्टर की तरफ से भी आपको, हम सब की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के